or metal ion from salt solution may get deposited over the metal rod. That is like copper sulfate का solution अगर हम लिया और copper rod लिया हमने, तो there are two possibilities. या तो copper rod से copper sulfate solution में dissolve होगा, या फिर copper sulfate solution में से copper ion जो है वो copper rod पर आकर के deposit होएगा. ठीक है, there are two possibilities and one of them will happen. The happening of a process one or two is dependent. मतलब इसमें से कौन सा होगा, that is dependent upon the intrinsic ability of the metal atom to exist in equilibrium with its own ions. ठीक है, every metal has an intrinsic ability to exist in equilibrium with its own ions. This intrinsic ability of metal ion system to exist into equilibrium with each other is described by the concentration of metal ion in the solution. ठीक है, और is related or is linked, very well linked, describe के बदले linked to the concentration of, very well linked to the concentration of metal ion in the solution. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे लिया कि मान लो ऐसा है कि कॉपर 2+ आयन यहाँ पर हमने जो लिया है that is 10⁻⁻⁶ मोल है. ठीक है, और इधर कॉपर रॉड इसको डिप कर रहे हैं हम, and what we observe is कि they are in equilibrium at a concentration, at this particular concentration the two are in equilibrium. That means neither this is going to get or metal atoms are getting released in form of Cu2+, or nor Cu2+ is getting deposited on the metal rod. Neither rod is dissolving nor metal ions from solution is getting deposited over metal rod. That is 10⁻⁻⁶ is the -6 molarity is the place where the two are in equilibrium. अगर concentration को मैं कम करूंगा, मतलब 10⁻⁻⁷ या -8 कर दूंगा, तो what will happen? Some Cu from metal rod will start dissolving into the solution. और अगर मैंने concentration को बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे 10⁻⁻4 कर दिया या 1 मोलर कर दिया, तो the ions from the solution will eventually get deposited on the metal rod. It will get deposited on the metal rod. ठीक है, by absorbing electron from solution or from some other species, या फिर वो हमसे demand करेंगे. ठीक है ना? Are you guys getting this point? Now next thing which I said is this intrinsic ability of copper ion to remain in equilibrium with copper 2+ solution, that is intrinsic ability of रोज गिरती सुनो वहां से लग गला निकालते थे लड़की जानवर है. चलो इधर आके बैठो. intrinsic ability of metal to remain in equilibrium with metal ion is indicated by their electrode potential. So basically electrode potential is something, पहले तो electrode और फिर electrode potential. Electrode potential is a terminology which indicates the intrinsic ability of metal ion system to remain in equilibrium. ठीक है, और इसमें दूसरी चीज होती है कि अगर सॉल्यूशन को ये इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो है, इसको खैर स्टैंडर्ड वगैरह में हम जाएंगे, विल डिस्कस इट,
उसमें ये होता है कि कोई भी मेटल आयन को अगर उसके मेटल आयन सॉल्यूशन विच इज 1 मोलर कंसेंट्रेशन, उसके साथ उसकी इंट्रिंसिक बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, वेदर इट इज गोइंग टू डिसॉल्व or whether metal ion is going to get deposited over the metal rod. ये फिनोमेना होना है दोनों के बेसिस पर, दोनों में से क्या होना है उसके बेसिस पर उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखने का तीसरा तरीका भी है, वो मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एनीवे ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही होता है कि कोई भी मेटल रॉड को अगर मैंने उनके सॉल्यूशन में डिप किया, this is metal rod, इसमें एक इस तरह का जो सिस्टम बनता है, इसमें दिस मेटल रॉड इज टर्म्ड एज, फर्स्ट थिंग इट्स टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज सिंपली डिफाइंड एज, या फिर इलेक्ट्रोड, ये एक सिंगल हाफ सेल मैंने बनाया, इसको एक्चुअली अगर वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल में मैं कन्वर्ट करूं तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। Two things or two beakers taken separately, filled with solutions of their respective salts, and two metal rods dipped in them. These rods are then connected by external wire so that flow of electricity can take place. At the same time, they are connected with a salt bridge. This is salt bridge.
electrode, this is another electrode, salt solution, or simply electrolytic solution, electrolyte, electrolyte, yes, flow of यहाँ पर एक एक करके चीजें समझते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में एंड अगेन ऑब्वियसली ये जो शुरू में इंट्रिंसिक एबिलिटी वाली बात कही है उसके रेस्पेक्ट में भी चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए होता ये है कि इस सेल के दो पार्ट्स हैं, दो हाफ सेल्स होते हैं। दिस इज हाफ सेल 1, हाफ सेल 1 एंड दिस इज हाफ सेल 2, ठीक है। दोनों में अलग अलग मेटल रॉड्स डले हुए हैं उनके रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस, इज इट ओके। और दोनों को अपने अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, किसी में ज्यादा कैपेबिलिटी होगी जिसमें और किसी में कम कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं हम कि हाफ सेल 1 में जो मेटल और मेटल आयन सिस्टम है उसमें मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है मेटल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने, इज इट ओके। यानी मेटल एटम का मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर। तो व्हाट विल हैपन, और सपोज थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं ऐसे कि ये यहाँ पे द सर्किट इज ओपन, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, द मोमेंट वी आर गोइंग टू डिप मेटल रॉड इनटू द सॉल्यूशन, मेटल एटम जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ छोड़ देगा, रॉड के ऊपर। ये जब यहाँ से आउटर सरफेस वाला जो मेटल एटम है, if I am going to look at it in a more closer perspective, what is going to happen, surface वाले जो atoms होंगे, surface atoms, they will first come in contact with the solution and they will get into the solution by leaving its 2 electrons out or n electrons, whatever electrons are there, जितने वो छोड़ सकता है उतने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा, रॉड के ऊपर छोड़ेगा। तो रॉड के ऊपर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्सेस क्रिएट होने लगेगा, इज इट ओके। द रॉड विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड, एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। नाउ निगेटिव चार्ज का अगर बिल्डअप हो रहा है, कहीं पर बैठ रहा है निगेटिव चार्ज आ करके, तो ऑब्वियसली उस जगह का कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, that place will have certain potential, isn't it? If I am going to place charges, cluster of charges, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ला करके एक ही जगह पे रख दूं, तो इस जगह पे there will be some inherent potential which will be developed, isn't it? Potential, obviously इलेक्ट्रॉन काउंट पोटेंशियल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। दैट पोटेंशियल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज गेटिंग स्टोर्ड ओवर देयर। अब बेसिकली होगा क्या, थोड़े टाइम बाद इस पोटेंशियल की वजह से
फर्दर कोई मतलब ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने की वजह से फर्दर कोई मेटल एटम जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो कि सफिशिएंट है फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आने को रेसिस्ट करने के लिए। और कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पहले से जो पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन दे विल रिपेल दैट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट हैज टू कम फोर्सफुली सो दैट इट कैन काउंटर एक्ट द रिपल्सन। जब तक वो उस रिपल्सन को काउंटर एक्ट कर सकता है तब तक वो रिलीज होकर के यहाँ पर आते रहेगा, या मेटल आयन रिलीज होते रहेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छूटते रहेगा। एक बार जब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, then it will not allow the metal atom to release or leave its electron on the rod and go to the solution on its own. Are we getting this thing? This phenomena is known as, this is the electron left behind electrons on an isolated metal rod when it is dipped in its electrolytic solution is known as electron pressure, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन प्रेशर को ही हम लोग क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रेशर डेंसिटी बोल सकते हैं। दिस इज इन फैक्ट टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? और पहले भी मैं यही समझा रहा था आप लोगों को, इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ एटम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद दिस ऑब्वियसली बाय लिविंग इलेक्ट्रॉन। ये वाले पार्ट पर एम्फेसिस नहीं था। नाउ द एम्फेसिस ऑन द पोटेंशियल व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड ऑन द रॉड, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी रहता है, इक्विलिब्रियम तक ही वो रिलीज करेगा, उसके बाद चीजें रुक जाती हैं, ठीक है। अब फिर से कब चालू होएगा? जब ये किसी और के साथ कनेक्ट होएगा। नाउ माय पॉइंट इज लेट अस होल्ड ऑन। ये यहाँ पर डिप किया मैंने इसके सॉल्यूशन में तो ये रिलीज हो रहा है, इसको भी डिप किया इसके सॉल्यूशन में, दूसरे के सॉल्यूशन में, तो इसमें भी सेम फेनोमेना होगा, इजंट इट? उसको समेट रही हूँ बेटा। दूसरे मेटल आयरॉड को उसके सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर भी वही फेनोमेना होगा। मेटल एटम और डिसॉल्व होएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब लेकिन दोनों सिस्टम की इंट्रिंसिक एबिलिटी जो रहेगी टू सस्टेन द इलेक्ट्रॉन प्रेशर, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन प्रेशर को सस्टेन करने की इनकी अपनी इंट्रिंसिक एबिलिटी अलग अलग रहेगी, किसी की ज्यादा रहेगी, किसी की कम रहेगी। इज इट ओके? यस सर। अब है अब है अब है अब है आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Yes, sir. आई सेड आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। हाँ, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ। इक्विलिब्रियम थोड़ा थोड़ा पता है तुमको, ध्यान है नहीं है? नहीं सर, मैंने वो पार्ट पढ़ा नहीं। इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है? केमिकल इक्विलिब्रियम नो सर। ओके, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम 12th का? हाँ सर, वो मैंने पढ़ा है थोड़ा। तो ये साइन से वाकिफ हो ना?
Yes, sir. ठीक, चलेगा. So now I am going to give definitions again of different things being or present over here, and then I'll come back again on electron potential. First, let me define what is electrolytes, types of electrolytes, और फिर इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन, एंड देन आई विल अगेन कम बैक टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सी, इस पूरे प्रेटेक्स्ट का, इस पूरे डायग्राम का जो की होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. बट that has to be approached from different ideas so that you can understand it well. ठीक है, क्योंकि मतलब आगे चल के और हम देखने वाले हैं कि जैसे हम अभी रिलेटिव बोल रहे हैं ना, अब इसकी मेजरमेंट हमको जब करने हम जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. मेजरमेंट, इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट किया नहीं जा सकता है. दैट इज व्हाई इसको डिफाइन करने में शुरू से ही काफी प्रिकॉशन लेना होता है व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग इट टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत परसेप्शन आपके दिमाग में गया तो फिर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उड़ जाते हैं. ठीक है. Let me now start with electrolytes first, which is the first component of a voltaic cell or any electrochemical cell. ठीक है. The solution or liquid which is capable of conducting electricity the solution or any liquid dissolution or any liquid can be can be classified into following groups based on their electrolytic nature. Number one, true electrolyte. Second, potential electrolyte. Thirdly, non-electrolyte.
True electrolytes, those solutions or liquids or those chemicals which conduct electricity electricity in their molten as well as solution phase. Potential electrolyte, those chemicals those chemicals which conduct electricity only in solution phase but not in molten phase. Lastly, non-electrolytes, those chemicals which do not conduct electricity either in solution phase or in molten phase. ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ भी यहाँ के लिए शुगर, ग्लूकोज, शुगर, एसीटोन, केरोसिन, पेट्रोल. Potential electrolyte, you have most of the acid like HCl, HNO3, NaOH. All acids and bases, whether they are weak or strong, they all are potential electrolytes. ठीक है? H2SO4 or CH3COOH. So all acid and bases are all acids and bases fall into this category. ठीक है? Generally, organic compound except acid or formal bases are part of non-electrolytic system. True electrolytes, all the salts, they are going to be the part of
all acids and bases. All salts all organic compounds with except except organic acids चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्पेसिफिकली लिख रहे हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स भी चलेगा विजिबल ऑर्गेनिक एसिड्स Right. स्लैश बेस 2015. Right. इलेक्ट्रोलाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आयंस के मूवमेंट में हेल्प करना ठीक है इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर काम क्या होता है मेजर इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस नंबर वन and obviously it helps in uh, it provides an environment where metal ion system can coexist in equilibrium okay so the role of electrolyte is in our scenario role of electrolyte number one facilitate an environment for establishment of equilibrium of equilibrium between metal ion system. Secondly, facilitates the facilitates transfer of transfer slash mobility of mobility of ions. So these are the two important roles of electrolyte over here. Now next thing is next component is electrode. Task of electrode or the definition of electrode.
इलेक्ट्रोड जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड रॉड मेटल रॉड ही हो, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मेनी टाइम्स इलेक्ट्रोड जो होते हैं प्योरली सॉलिड ही सिर्फ नहीं होते हैं, दे कैन बी अ मिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और anyway, electrode is, it is a resting place for left out electrons or 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 and basically it is the resting place for left out electrons. This is the link from where or this is the link at which from where at which electrons interact with electrons interact with metal ions, ठीक है। सो दो चीजें यहाँ पर होती हैं, जैसे अभी पार्ट में बता रहा हूँ पूरी चीजें, और एक बार डेफिनेशन के बाद, जैसे एक काम तो यहाँ पर मैंने बताया कि मेटल जो है वो मेटल सॉल्यूशन में जाने के पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पार्क कर देता है, छोड़ देता है। ये इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली अगर ये कनेक्टेड रहेगा और दूसरे वाले का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है तो फिर वो यहाँ से दूसरे वाले रॉड पर जाएगा, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब यहाँ सॉल्यूशन में अगर कोई मेटल आयन है तो उसको अपनी तरफ पुल करेगा, and then those excess electrons which are here on this rod, which has come from the other rod, will then interact with the metal ion at its surface. Are you getting this point? So Yes, sir. electrode provides a surface. It is the resting place for left out electron. It is the link at which electrons interact with the metal ion, or this is it provides the surface for interaction of electrons with the metal ion. Okay, fine. I think that will be a better sentence. इसको रहने देते हैं, नीचे में उसको लिख देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। और electrodes they provide surface for electrons to interact with metal ions, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि all the interaction between
metal ions and electrons, ठीक है, all the interaction between whether being left out वाला process हो या being combining वाला, ठीक है, that means whether we are talking about this one or whether we are talking about the other one, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से जिस प्रोसेस की भी बात कर रहे हो, यहाँ पर मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल एटम बन रहा है, ठीक है, दोनों में से जिस प्रोसेस की भी बात करें, both these processes are going to take place at the surface of electrode, ठीक है, both the processes take place at the surface of electron, not in the bulk of electrode, अंदर नहीं होता है, सरफेस पर होता है ये फिनोमेना. दिस इज ऑल्सो नोन एज सरफेस फिनोमेना. सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोड के ऊपर exchange of electron is actually a surface phenomena that takes place at this, ठीक है, फाइन. इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, वो नोट कर लिया था हम लोगों ने ना. Yes, sir. Yes, sir. Electrodes are of two types based on their ability, ठीक है, पहले को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड. Cathode is the electrode where reduction takes place, ठीक है, that means metal ion will accept electrons to form metal atom, ठीक है, anode is the place on the electrode where आद्या मोटर क्यों वेस्ट कर रही है? oxidation takes place. फिर से M solid comes in equilibrium with Mn plus M electrons. M के बदले कुछ और लिख लेते हैं, से maybe P solid Vn plus, जनरली aqueous रहता है, तो दिस इज ये कन्वर्जन, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन.
कैथोड पर सिर्फ रिडक्शन होएगा, एनोड पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होएगा। There are other types of electrodes also. Types मतलब ये तो कैटेगरी हो गया based on their ability. They can either work as cathode or as a anode. ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स और भी चीजों पर डिपेंड करते हैं। देयर लुक, लुक मतलब फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्टेट के ऊपर, एंड दैट या फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सेपरेटली मे बी इन थर्ड और फोर्थ लेक्चर। ठीक है। सो इलेक्ट्रोड्स के टाइप एक बार फिर से आएंगे हमारे पास, बट दिस इज अ ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ देयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। वहां पर टाइप हम डिस्कस करेंगे या क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ये इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या फिजिकल नेचर, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर इलेक्ट्रोड्स को कैटेगराइज करेंगे। दे आर गोइंग टू बी मेटल मेटल आयन सिस्टम इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड भी होता है, या मेटल मेटल आयन हाफ सेल भी उसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोड सिस्टम भी बोलते हैं। तो कुछ कैटेगराइजेशंस और होंगे हमारे जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था क्या कर दिया आपने? देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये एक सॉल्ट ब्रिज है। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है यहाँ पर कि से यहाँ पर मेटल है, इस मेटल की ज्यादा इंट्रिंसिक एबिलिटी है इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही डिप करेंगे हम, मेटल यहाँ से टूट करके मेटल आयन में मेटल आयन बनने लगेगा, और मेटल आयन बनेगा तो यहाँ पर बहुत सारे मेटल आयन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इधर से जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में मेटल आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस को अपनी तरफ पुल करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल आयन धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे एट द सरफेस एंड विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। इज इट ओके? दिस फेनोमेना इज गोइंग टू टेक, हेलो सर इलेक्ट्रोड को नोटेशन दे दो ना, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैं दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेटल जो है मेटल आयन में आया, तो इस इलेक्ट्रोड को अब मैं नाम देता हूँ कैथोड, सॉरी एनोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज इट ओके? यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मेटल आयन। इज इट ओके? ये यहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है। एंड दिस इज नाउ कैथोड। कैथोड, एंड यहाँ पर मे बी B atom या C atom whatever B M plus is accepting M electrons to become B solid। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, वैसे एरो दिया हुआ है बट बोथ द प्रोसेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, they have to be represented like that। मोस्टली हम सिंगल एरो से इंडिकेट कर देते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर सिंगल एरो भी इक्विलिब्रियम ही इंडिकेट कर रहा है। देयर इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेशर बिल्ड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इस प्रोसेस में इसको फ्लो भी कर दिया।
ठीक है, और इधर आया तो यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनी, जिसकी वजह से आजू बाजू के जो मेटल आयंस है उनको ये अपने पास खींचा और उनको इलेक्ट्रॉन दे करके सरफेस के ऊपर चिपका दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जब ये प्रोसेस चालू नहीं हुआ था, मान लो 100 कटायन थे, ठीक है, और 100 अनायन थे, इज इट ओके? जब प्रोसेस चालू हुआ तो धीरे धीरे मेटल एटम्स यहाँ पर मेटल आयंस में कन्वर्ट होने लगे। तो मेटल एटम अगर मेटल आयन में कन्वर्ट होने लगा, दैट मींस दिस काउंट इज इंक्रीजिंग, दिस इज फिक्स्ड, इज इट ओके? इन दिस हाफ सेल। Yes, sir. दूसरे हाफ सेल में क्या होगा, दूसरे हाफ सेल में क्या होगा, यहां से मेटल आयंस जो है ये अपना अपना चार्ज छोड़ करके और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल आयन बनते जा रहे हैं, राइट? इधर मान लो 200 200 थे दोनों, 200 कटायन and 200 anion. Now what will happen? This number is going to decrease. Is it okay? This number will remain same. Is it okay? Yes, sir. In either case हो क्या रहा है, यहाँ पर किसका एक्सेस हो गया, यहाँ पर कटायन का एक्सेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर किस चीज का एक्सेस हो गया, अनायन का एक्सेस हो गया। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now थोड़े टाइम बाद इस तरह से चलते रहेगा, शुरुआत में चलते रहेगा, उसके बाद क्या होगा, जो इनकी इनहेरेंट पोटेंशियल थी, ठीक है, उससे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का बिल्ड हो जाएगा, जो इनके इनहेरेंट पोटेंशियल को काउंटर करने लगेगा। ठीक है, इनहेरेंट पोटेंशियल मतलब अब इसका फर्दर इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के पॉजिटिव आयन बनाने और इलेक्ट्रॉन को देने की जो एबिलिटी थी, एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोलिए सर।